آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ شیخ یاسین سے خبریں سنیے۔ قوم 15 اگست کو اپنا 79واں یوم آزادی شایان شان طریقے سے منانے کے لیے تیار۔ ہر گھر ترنگا مہم کے تحت پورے ملک کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر میں بھی ترنگا ریلیوں کا انعقاد جاری۔ ریلیوں میں لوگوں کی بڑھ چڑھ کر شرکت۔ ایل جی منوج سنہا نے یوٹی میں کھیلوں کے بنیادی ڈھانچے کو تقویت بخشنے کا دہرایا عزم، اور وزیر اعظم نریندر مودی نے من کی بات کے اگلے شمارے کے لیے 29 اگست تک لوگوں سے کی آرا اور تجاویز طلب۔ پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ قوم 15 اگست کو جوش و خروش اور حب الوطنی کے جذبے کے ساتھ ملک کا 79واں یوم آزادی منانے کے لیے تیار ہے۔ یوم آزادی کے سلسلے میں ملک بھر میں لوگ سرگرمی کے ساتھ ہر گھر ترنگا مہم میں شرکت کر رہے ہیں۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے آج ہر گھر ترنگا مہم کے تحت اپنی رہائش گاہ پر ترنگا پھہرایا۔ وزیر اعظم نریندر مودی 15 اگست کو دلی میں تواریخی لال قلعے پر یوم آزادی تقریب منانے میں قوم کی قیادت کریں گے۔ نئی دلی میں یوم آزادی کی تقریب میں 28 ریاستوں اور یوٹی سے تعلق رکھنے والے 210 پنچایت لیڈران مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کریں گے۔ یوم آزادی کے سلسلے میں آج بخشی اسٹیڈیم سری نگر میں ایک فل ڈریس ریہرسل کا انعقاد کیا گیا، جہاں صوبائی کمشنر کشمیر وجے کمار بھدوری نے قومی جھنڈا پھہرایا، پریڈ کا معائنہ کیا اور مارچ پاسٹ پر سلامی لی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے حکومت کی ترقیاتی، سماجی اور اقتصادی حصول یابیوں کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ وادی نے مختلف سیکٹروں میں ترقی کے اعلیٰ معیار حاصل کیے ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے آپریشن سندور اور آپریشن مہادیو کا بھی ذکر کیا۔ اس سے پہلے صوبائی کمشنر نے پرتاپ پارک سری نگر میں بلیدان ستمبھ پر ان شہیدوں کو خراج عقیدت ادا کیا جنہوں نے اپنے فرائض کی انجام دہی کے دوران اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ان کے ہمراہ آئی جی پی کشمیر وی کے بردی، ڈی سی سری نگر اکشے لابرو اور کئی دیگر افسران بھی موجود تھے۔ اس دوران جموں کشمیر کے تمام اضلاع میں بھی یوم آزادی کے سلسلے میں فل ڈریس ریہرسل منعقد کیے گئے۔ صوبائی کمشنر کشمیر وجے کمار بھدوری نے کہا ہے کہ وادی میں یوم آزادی تقریبات احسن طریقے پر منانے کے لیے سیکیورٹی سمیت تمام انتظامات مکمل کیے گئے ہیں۔ سری نگر میں میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 15 اگست کے دن کسی قسم کی پابندی نہیں رہے گی۔ انہوں نے کہا انڈیپینڈنس ڈے میں ہم سب کا تیوہار ہے، تو سبھی اس میں انوائٹڈ ہے جیسے لاسٹ ایئر تھا، اور آپ لوگوں کے تعاون سے بہت لوگوں کا اسے پارٹیسپیشن بھی شروع ہوا تھا۔ بارش بھی آپ کو پتہ ہے لاسٹ ٹائم تھی، بٹ پھر بھی لوگوں کا اتساہ کم نہیں تھا۔ سیم وے اس بار بھی مجھے امید ہے، ایکسپیکٹڈ ہے، اور پھر سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ انوائٹڈ ہیں، بس آپ کا آئی ڈی کارڈ ہی آپ کا پاس ہے۔ جلدی آئیں گے تو وہاں کہوا استعمال بھی آپ کو ملے گا، اور بیٹھنے کے لیے سیٹ بھی اچھے سے مل جائے گی۔ مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے آج کٹھوا میں منعقدہ ایک بڑی ترنگا ریلی میں شرکت کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر موصوف نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی اپیل پر شروع ہوئے ہر گھر ترنگا مہم میں لوگ بڑھ چڑھ کر جوش و جذبے کے ساتھ شرکت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ صرف ایک ریلی نہیں بلکہ یکجہتی، حب الوطنی اور آپسی بھائی چارے کا ایک بے مثال پیغام ہے۔ ادھر جموں کشمیر میں آج بھی ہر گھر ترنگا مہم کے تحت ترنگا ریلیوں کا انعقاد جاری رہا۔ ان ریلیوں میں سماج کے مختلف طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں، طلاب، سرکاری اہلکاروں اور سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں نے قومی یکجہتی اور حب الوطنی کے جذبے کے ساتھ حصہ لیا اور قومی گیت گائے۔ بی جے پی جموں کشمیر کی طرف سے آج سانبا اور جموں میں متعدد ترنگا ریلیوں کا انعقاد کیا گیا۔ بی جے پی صدر ست شرما نے سانبا ضلع کے رام گڑھ اور جموں شہر میں ترنگا ریلی کی قیادت کی۔ ان کے ہمراہ سنجیتا ڈوگرا اور کئی دیگر لیڈر بھی موجود تھے۔ گول مارکیٹ میں بی جے پی جنرل سیکرٹری آرگنائزیشن اشوک کول اور بی جے پی نیشنل سیکرٹری ڈاکٹر نریندر سنگھ کی قیادت میں ترنگا ریلی نکالی گئی۔ اشوک کول نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان ریلیوں میں بڑھ چڑھ کر شرکت سے قومی یکجہتی کے ہمارے جذبے کی عکاسی ہوتی ہے۔
बीजेपी जम्मू कश्मीर के मीडिया इंचार्ज डॉक्टर प्रदीप मल्होत्रा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के कोने कोने में मुनक्कदा तिरंगा रैलियों में लोगों की सरगर्म शिरकत से यकजहती, हुब्बुल वतनी और प्यार और मोहब्बत के जज्बे की अक्कासी होती है। डायरेक्टर होम गार्ड्स की तरफ से आज श्रीनगर में एक तिरंगा रैली का एहतमाम किया गया, जिसमें होम गार्ड्स के रजाकारों और अफसरों ने सरगर्मी के साथ हिस्सा लिया। उन्होंने मुल्क की तरक्की और यकजहती के लिए काम करने का भी अहद लिया। रियासी में डिप्टी कमिश्नर निधि मलिक की क़यादत में आज हर घर तिरंगा मुहिम के तहत तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें काफी तादाद में तलबा, सरकारी एहलकारों, हिफाजती अमले के एहलकारों और मुअज़्ज़ज़ शहरियों ने शिरकत की। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर ने खेल के मैदान में नुमाया पेशरफ्त हासिल की है और यूटी भर में खेलों के बुनियादी ढांचे को मुसलसल तक़वियत हासिल हो रही है। अनंतनाग में बिजबिहाड़ा प्रीमियर लीग का इफ्तिताह करने के बाद खिताब करते हुए एलजी ने कहा कि मुस्तक़बिल करीब में जम्मू कश्मीर में कौमी सतह के टूर्नामेंट भी मुनक़्क़िद किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये क्रिकेट लीग जम्मू कश्मीर के नौजवानों को अपनी सलाहियतों को निखारने का प्लेटफार्म फराहम करती है, ताकि वो आगे जाके कौमी और बैनुल अक़वामी सतह के मुकाबलों में शिरकत कर सकें। कश्मीर घाटी में इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट देखने के लिए पता नहीं कितनी युवा पीढ़ियां तरस गई थी, लेकिन मैं इसे सौभाग्य मानता हूं कि पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह का जम्मू कश्मीर बना है, जो असंभव था वो संभव होता दिख रहा है। और जम्मू कश्मीर भारत का विकसित राज्य बने, इसके लिए यहाँ के निवासियों को, यहाँ की सरकार को, यहाँ के प्रशासन को, सबको संकल्पबद्ध होकर के आगे बढ़ने की जरूरत है। निजी तौर पर मेरा दृढ़ विश्वास है कि स्पोर्ट्स में बहुत बड़ी ताकत होती है, और खासतौर से क्रिकेट और फुटबॉल, ये घाटी के नौजवानों के लिए केवल स्पोर्ट्स खेल नहीं है, बल्कि ये एक जुनून है इनका जो सर चढ़कर बोलता है। चीफ सेक्रेटरी अटल ढिल्लों ने जम्मू कश्मीर में किसानों की बहबूदी के लिए कायम किए गए किसान खिदमत घरों को मुस्बत तब्दीली के अहम मराकज़ के तौर पर तरक्की देने पर जोर दिया है। श्रीनगर में एक आला सतह की मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा कि हर किसान के कुंबे में कम से कम एक फर्द को किसान खिदमत घरों के साथ रजिस्टर किया जाना चाहिए, ताकि काश्तकारी से मुतल्लिक जानकारी वक्त पर उन तक पहुंच सके। बाकी खबरों से पहले ये वक्फा। आप अपने कारोबार को फरोग देना चाहते हैं तो आकाशवाणी श्रीनगर है आपकी आवाज का सबसे मौसर जरिया। आकाशवाणी से हर दिन खबरों के 11 बुलेटिन के अलावा तालीम, मालूमात, तफरीह और मौसीकी पर मबनी मुख्तलिफ प्रोग्राम नशर होते हैं। अपने कारोबार का इश्तिहार बुक कराने के लिए आज ही फोन नंबर 9419000258 पर राबिता करें। आकाशवाणी श्रीनगर, जहां हर आवाज बनती है जम्मू कश्मीर की पहचान। अब पेश है बाकी खबरें। सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार भिधोरी ने कहा है कि बाजारों में गले सड़े गोश्त और इससे बनी अशिया एक संगीन मसला है और इंतजामिया इस पर कड़ी नजर रखने के साथ साथ इससे निपटने के लिए भी इक़दाम कर रही है। श्रीनगर में मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए उन्होंने इस मसले पर काबू पाने के लिए सभी का ताउन तलब किया। मुझे नहीं लगता कि एक ही दिन में रोटल मीट आ गया होगा। ये तो कहीं ना कहीं जो डिमांड सप्लाई या उसका गैप रह के ऑनरेबल सीएम साहब ने एक मीटिंग लेके इस पे एक एक्शन प्लान बनाने के लिए बात की है। साथ में आप लोगों के माध्यम से भी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग भी सजग रहें। देखें, ये केवल मीट का ये मसला नहीं, बल्कि ऑल मिल्क प्रोडक्ट और बाकी चीजों पे भी ये मसला हो सकता है। तो सबको इस पे ध्यान देने की जरूरत है, बिकॉज एक सीरियस मसला है। फूड सेफ्टी महकमा वादी में लोगों तक गोश्त और इससे तैयार होने वाली अशिया समेत दीगर खाने पीने की मयारी चीजें पहुंचाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहा है और महकमा अब बाजारों में दस्तयाब दीगर अशिया के मयार की तरफ भी तवज्जो दे रहा है। इस हवाले से फूड सेफ्टी महकमा कश्मीर के असिस्टेंट कमिश्नर हिलाल अहमद मीर ने हमारे नुमाइंदे सुहेल भट्ट के साथ बात करते हुए कहा, सब चीजों पे हमारी नजर होती है। ये सिर्फ गोश्त का मामला आज थोड़ा ये उभरा
तो अदरवाइज अगर आप हमसे डिटेल्स ले लेंगे, यू विल योरसेल्फ सी कि हाउ मेनी 1000 सैंपल्स वी हैव लिफ्टेड फ्रॉम एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सारे फूड आइटम्स की सैंपलिंग होती है, अभी वहीं से लिस्ट आता है कितना टारगेट है सैंपल्स का, कंपाउंडिंग का कितना टारगेट है, इंस्पेक्शन का कितना था। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इस वक्त भी हमारे पास MSTVs हैं, उसके साथ साथ बहुत बड़ी लैब है यहाँ श्रीनगर में या जम्मू में भी, तो वहाँ टेस्टिंग होती है। और अगर हमें लगता है कि किसी फूड प्रोडक्ट में यहाँ टेस्टिंग नहीं हो सकती है, वी कैन सेंड दैट आउटसाइड, सम लैब्स आउटसाइड आर आल्सो नोटिफाइड फॉर J&K। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मुनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क भर में हर सतह पर कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम। हर कोई अपने देश से प्रेम करता है, तो फिर उन लोगों का साथ क्यों देना, जाने अनजाने में भी क्यों देना, जो हमारे भारत को नुकसान पहुंचा रहा है। से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए लाजमी इक़दाम के बारे में एक कश्मीरी गुलकारा जुबैदा अली ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, ड्रग एक ऐसी वबा बीमारी है जो एक इंसान को कागज के कीड़े की तरह खोखला कर देता है। कसूरवार माँ बाप को ठहराए जाते हैं, क्योंकि बच्चा माँ के कोख में ही पलता है। इसलिए माँ बाप को भी अपने बच्चे पर कड़ी नजर रखनी होगी ताकि हमारा बच्चा किसी ड्रग में मुनव्वस न हो, और उसका बैकग्राउंड देखना होगा। पुलिस ने इस ड्रग पर बहुत काम किया और कर भी रहे हैं, मगर पुलिस इसके रूट्स को खत्म नहीं कर रहे हैं। अगर पुलिस इस ड्रग के रूट्स को खत्म करेंगे तो हमारा बच्चा इसका सुराग कहाँ ढूंढेंगे। हमारा बच्चा जब इस ड्रग से दूर रहेंगे तो वो खुद ब खुद एक अच्छे रास्ते पे आएंगे। महकमा ज़राअत वादी में सब्जियों की पैदावार और पैदावारियत में इजाफा करने के लिए मुतअद्दिद स्कीमें और प्रोग्राम अमला रहा है, जिनकी बदौलत किसानों की आमदन में इजाफा होने के साथ साथ वादी अब सब्जियों की पैदावार में खुद कफील बन गई है। इस ज़िम्न में महकमा ज़राअत कश्मीर के डायरेक्टर सरताज अहमद शाह ने हमारे नुमाइंदे महमूद अहमद खान के साथ बात करते हुए कहा, जो भी हमारा सीजन है राइट फ्रॉम मार्च अप टू नवंबर, इस पीरियड में ना सिर्फ हमारा कश्मीर खुद कफील है बल्कि एक्सपोर्ट भी करता है वेजिटेबल टू रेस्ट पार्ट्स ऑफ द इंडिया। हमारा थोड़ा सा स्लैग सीजन आता है विच इज द विंटर मंथ्स। उसमें इतना टेम्परेचर डाउन हो जाता है कि बाहर ओपन कंडीशंस में क्रॉप कल्टीवेट करना इम्पॉसिबल है। इसके लिए सरकार ने भी उपाय ढूंढ लिया है। वी आर प्रोवाइडिंग high-tech polyhouses as well as low-tech polyhouses to the farmers at extremely 95% की सब्सिडी है हाईटेक पॉलीहाउसेस में। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने दरगाह बाबा नगरी वांगत के सजादा नशीन मरहूम मियाँ बशीर अहमद लारवी 91वीं नक्शबंदी की चौथी बरसी पर उन्हें खराज अकीदत अदा किया और समाज के पसमानदा तबकों की जिंदगी बेहतर बनाने में उनके रोल को उजागर किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने आज पार्टी हेडक्वार्टर पर पार्टी कारकुनों के साथ बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करना वक्त की अहम जरूरत है और पार्टी इसकी बहाली के लिए जद्दोजहद जारी रखेगी। इस मौके पर पार्टी के सूबाई सदर कश्मीर एडवोकेट शौकत अहमद मीर और कई दीगर लीडर भी मौजूद थे। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर सत शर्मा और बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल ने मुश्तरका तौर पर एक मीटिंग की सदारत करते हुए सेवा पखवाड़ा के सिलसिले में किए जा रहे इंतजाम का जायजा लिया। मीटिंग में बताया गया कि यह पखवाड़ा 17 सितंबर को शुरू होकर 2 अक्टूबर को इख्तिताम पजीर होगा। सीनियर बीजेपी लीडर और MLA चौधरी विक्रम रंधावा ने जम्मू में एक अवामी दरबार का इनेकाद करके लोगों के मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। बीजेपी के एक और लीडर गिरधारी लाल रैना ने इलाहादी पसंदी पर मबनी लिटरेचर पर पाबंदी का खैर मकदम करते हुए कहा है कि इस फैसले से इलाहादी पसंदी के नजरिए को खत्म करने में मदद मिलेगी। बीजेपी के एक और लीडर पवन शर्मा ने आज एक पेड़ मां के नाम मुहिम के तहत शिव मंदिर कठवा में एक पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रा, कारगुजार सदर रमन बल्ला और कई दीगर लीडरों ने आज रामबन और रियासी जिलों से ताल्लुक रखने वाले कारकुनों के हमरा जम्मू में स्टेटहुड मुहिम की हिमायत में एक रोजा भूख हड़ताल की। इन लीडरों ने कहा कि जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल होने तक ये मुहिम जारी रहेगी। बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की तरफ से आज पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करने की हिमायत में भूख हड़ताल की गई। इस मौके पर हाजी अब्दुल रशीद डार, निजामुद्दीन भट्ट, मुश्ताक अहमद तांतरे और कई दीगर लोग मौजूद थे। पीडीपी लीडर और एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि हमदर्दी की बुनियाद पर तकर्रुरियां अमल में लाने के लिए SRO 43 के 928 और रिहेबिलिटेशन असिस्टेंस स्कीम के 1297 मामला जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में इल्तवा में पड़े हुए हैं। उन्होंने वजीर आला उमर अब्दुल्ला से अपील की है कि वो अपने इख्तियारात को बरोए कार लाते हुए कवानीन में नरमी लाकर इन मामलात को तरजीही बुनियादों पर क्लियर करें ताकि इन कुंभों के मसाइल को कम किया जा सके और वो बाइज्जत जिंदगी गुजार सकें। भारतीय फौज के चिनार कोर ने उड़ी बारामुल्ला में लाइन ऑफ कंट्रोल पर ऑपरेशनल ड्यूटी अंजाम देते हुए अपनी जान की कुर्बानी पेश करने वाले हवलदार अंकित कुमार को खराज अकीदत अदा किया है। चिनार वॉरियर्स ने सोगवार कुंबे के साथ ताजियत और हमदर्दी का इजहार किया है। फौज की शिमाली कमान के लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा और कमान के दीगर अफसरों ने भी हवलदार अंकित कुमार को खराज अकीदत अदा किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में फौज ने कहा है कि दुख की इस घड़ी में शिमाली कमान सोगवार कुंबे के साथ खड़ी है। फौज ने राजौरी जिले के सुंदरबनी इलाके में मीडिया एहलकारों को लाइन ऑफ कंट्रोल पर फौज की बेमिसाल बहादुरी और अज़म का मुशाहिदा करने का मौका फराहम किया। दौरे के दौरान मीडिया एहलकारों को सरहद पर फौजी एहलकारों को दरपेश चैलेंजों से रोशनास कराया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 31 अगस्त को आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों के साथ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। लोग इस प्रोग्राम के लिए अपनी आरा और तजावीज़ इस महीने की 29 तारीख तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 और नरेंद्र मोदी ऐप या MyGov ओपन फोरम के जरिए भेज सकते हैं। आज इंसानी आज़ा अतिया के करने से मुतल्लिक बेदारी पैदा करने का आलमी दिन है। इस सिलसिले में आज दुनिया भर में तकरीबात का इनकाद हो रहा है जिनमें जिंदगियों को बचाने में इंसानी आज़ा को अतिया करने की अहमियत के बारे में जानकारी दी जा रही है। जल जीवन मिशन के मिशन डायरेक्टर खुर्शीद अहमद शाह ने आज एक मीटिंग के दौरान वादी के दीही इलाकों में अमलाई जा रही वाटर सप्लाई स्कीमों की पेशरफ्त का जायजा लिया। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान बेशतर मकामात पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34.4 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 24.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33.1 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।